لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 16 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے سے گاڑیاں، موٹر سائیکل، رکشہ تباہ، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ جوہر ٹاؤن دھماکہ، زخمیوں کے جسم میں بال بیرنگ کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ ایم ایس جناح اسپتال ڈاکٹر یحییٰ کا کہنا ہے دھماکے کے زخمیوں کے جسم میں بال بیرنگ موجود ہے۔ بال بیرنگ کی ہی وجہ سے لوگ زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں ایک حاملہ خاتون بھی شامل ہے جس کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ کا جوہر ٹاؤن دھماکے کا نوٹس، جناح اور دیگر اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی ہدایت۔ زخمیوں کے علاج کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بستار نے آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ جوہر ٹاؤن دھماکہ، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا اہم قومی مسائل کو پس پش ڈالنے سے کام نہیں چلے گا۔ امن و امان کی بگڑتی صورتحال توجہ کا تقاضا کر رہی ہے۔ صدر نون لیگ کی لاہور دھماکے کی مذمت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ عمران خان نے مسلح افواج کے سربراہان سمیت سینئر وفاقی وزراء کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار پر مشاورت کی گئی۔ اندرونی سیکیورٹی صورتحال سمیت دیگر اہم معاملات پر مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو سینسر کرنے پر پاکستان نے امریکی ٹی وی سے وضاحت مانگ لی۔ انٹرویو میں بھارتی ہندتوا سوچ کے بارے میں وزیر اعظم کے تاثرات سینسر کیے گئے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق امریکی ٹی وی نے وزیر اعظم کا انٹرویو سینسر کر کے آزادی اظہار پر قدغن لگائی۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم کا کہنا ہے کہ افغانستان سے فوجی انخلا اور اس پر پاکستان سے رابطہ نہ کرنے کا بائیڈن انتظامیہ کا فیصلہ بہت بڑی تباہی کا سبب ہوگا۔ یہ فیصلہ عراق کی جانے والی غلطی سے بھی بڑی غلطی ہوگی۔ لنزے گراہم کا مزید کہنا تھا کہ حیرت ہے بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان سے فوج انخلا پر پاکستان سے رابطہ نہیں کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کو کھری سنا دی۔ انسانی حقوق سے متعلق جنیوا میں ڈائیلاگ کے دوران پاکستان نے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر سے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ بھارت جھوٹ کا سہارا لے کر انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ خواتین کس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں۔ عمران خان کے بیان پر جمائمہ گولڈ سمتھ نے 8 اپریل کی اپنی ٹویٹ ری ٹویٹ کر دی۔ کہا برسوں پہلے سعودی عرب میں بھی نقاب کی ہوئے بزرگ خاتون نے افسوس کا اظہار کیا کہ جب وہ باہر گئی تو نوجوانوں نے پیچھا کیا اور ہراساں کیا۔ خواتین کے لباس سے متعلق وزیر اعظم کے بیان پر مریم نواز کا رد عمل۔ کہا عمران خان کا ریپ کو خواتین کے کپڑوں سے جوڑنا ان کی ذہنیت ہے۔ چھوٹی بچیوں کے ریپ ہوئے، کیا وہ ڈریس کی وجہ سے ہوئے؟ عمران خان کے بیان سے ریپسٹ کو حوصلہ ملا ہے۔ نائب صدر نون لیگ کی صحافیوں سے گفتگو۔ ایف اے ٹی ایف ایک تکنیکی فورم ہے جس کے ہم لوازمات پورے کر چکے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آ جائے۔ پلینری اجلاس پر نظر ہے، بھارت فورم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کو فورم کے سیاسی استعمال کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ وفاقی حکومت کا سرکاری اثاثے گروی رکھ کر سکوک بانڈز جاری کرنے اور قرض لینے کا فیصلہ۔ اسلام آباد، لاہور اور ملتان ایئرپورٹ گروی رکھنے کی منظوری دے دی۔ موٹر وے M3 اسلام آباد چکوال موٹر وے کو گروی رکھنے کی بھی منظوری۔
सरकारी असासे गिरवी रखकर कम शरह सूद पर 1800 अरब रुपए कर्ज हासिल किया जा सकेगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 42,519 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 930 नए मरीज सामने आए। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 2% रही। कोरोना वैक्सीन साइनोवैक की 20 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंच गई। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की खरीदारी चीन से की गई और मुल्क भर के मराकज़ को फराहम की जाएंगी। एनडीएमए आलमी मार्केट से वैक्सीन की खरीदारी के मामलात को देख रहा है। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक जाने वालों को एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन न लगाने पर मुल्तान में शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने 6 नंबर चुंगी चौक पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। तर्जुमान इंतजामिया का कहना है कि वैक्सीन की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मतलूबा वैक्सीन नहीं आ रही, वो कहाँ से लगवाएं? रहनुमा नून लीग परवेज रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ के बनाए असासों, मोटरवेज और हवाई अड्डों को गिरवी रखा जा रहा है। स्कूप बॉन्ड्स फरोख्त करके कर्जा हासिल किया जाएगा। ये गवाही है कि अगर खजाना लूटा होता तो आज स्कूप बॉन्ड्स के लिए असासे मौजूद ही न होते। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की इजलास में शिरकत। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए पॉलिसी का जायजा लिया गया। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग की पॉलिसी मुरतब करने का फैसला। पॉलिसी के जरिए चीन के सरमायाकारों को कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए अराजी दी जा सकेगी। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में चिप लगाकर ITS वाले नतीजे चाहती है। एहसन इकबाल कहते हैं कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश की। हुकूमत मुल्क को कंगाल कर चुकी है। मुल्क का निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है। हुकूमत के पास बहरान का एक ही जवाब है कि पिछली हुकूमत करके गई। आमदन से जायद असासजात केस में लाहौर हाईकोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर कर ली। फैमिली कोर्ट से जारी खुला के फैसले नाकाबिले अपील होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने खुला से मुतालिक कानूनी निकात पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा, बीवी को खावंद के साथ रहने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। किडनी हिल्स रेफरेंस एहतसाब अदालत ने साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला, एजाज हारून और अब्दुल गनी मजीद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान का सेहते जुर्म से इनकार। सलीम मांडवी वाला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब को हम कटहरे में बतौर गवाह लाएंगे। उन्होंने 40 रेफरेंस पर दस्तखत किए। लाहौर में मदरसे के तालिब इल्म से ज़्यादती के मुल्ज़िम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान और तालिब इल्म का तिब्बी मुआयना कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट चंद रोज़ बाद आएगी। मुल्ज़िम का DNA भी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के डाटा बैंक में शामिल कर लिया गया। मालाखंड में 6 बच्चे पुरस्रार तौर पर लापता हो गए। बच्चे 4 रोज़ कबल मदरसे जाने के लिए घर से निकले थे। मदरसे इंतजामिया का कहना है कि बच्चे आए ही नहीं थे। बच्चों की उम्र 12 से 10 साल के दरमियान है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। रावलबदीन के करीब डाकुओं का बैंक गाड़ी पर हमला। 5 करोड़ रुपए छीन कर फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से गाड़ी में मौजूद लेवीज एहलकार भी जख्मी। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक एहलकार रकम बैंक गाड़ी के बजाय निजी गाड़ी में ला रहे थे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा उस्मान खान काकड़ की मैयत को कोयटा पहुंचा दिया गया। सेनेटर उस्मान खान काकड़ की वफात पर कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में शोक। अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान की अपील पर कोयटा में तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए।
सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, सनतों को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। सुई सदन के मुताबिक नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस गैर मुअज्जला मुद्दत के लिए बंद की गई। कराची के इलाके डिफेंस में 20 इंच गैस पाइपलाइन पर तरक्याती काम जारी है। इर्द गिर्द के इलाकों में गैस की फराहमी मुतासर। शदीद गर्मी में पावर प्लांट्स का LNG पूरी ना मिली तो लोड शेडिंग मज़ीद बढ़ सकती है या फिर फ्रांस ऑयल पर महंगी बिजली पैदा की जा सकती है। पावर डिवीज़न ने खबरदार कर दिया। सुई सदन की जानिब से कम गैस फराहमी के मामले पर पेट्रोलियम डिवीज़न को खत लिख दिया। गिडानी शिप ब्रेकिंग पर लंगर अंदाज जहाज से 750 टन स्लिच गायब होने का इंकशाफ। बहरी जहाज को माहौल के दरपेश खतरात मवाद की वजह से भारत और बांग्लादेश में लंगर अंदाज होने से रोक दिया गया था। आमतौर पर इन जहाज में 350 टन स्लिच रखने की इजाज़त होती है। इस जहाज में 1500 टन स्लिच मौजूद थी। यूनुस खान ने कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। क्रिकेट बोर्ड और कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान ने बाहमी इत्तेफाक राय से राहें जुदा कर ली। यूनुस खान को गुज़िश्ता साल नवंबर में 2 साल के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया। टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम टॉप 10 बल्लेबाजों की फहरिस्त से बाहर। कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल नहीं हो सकता। Does it with a boundary. Smacks it to the fence. It's a big win for Peshawar Zalmi. They make it to their final once again. 4th time. And it was pretty comprehensive in the end. PSL 6 के दूसरे एलिमेंटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर पेशावर ज़ल्मी फाइनल में पहुंच गया। 175 रन्स का हदफ पेशावर ने 19 गेंद में पहले ही हासिल कर लिया। ज़ल्मी के हजरतुल्लाह की शानदार इनिंग्स 66 रन्स बनाए। PSL 6 की ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसले में बस एक रोज़ का इंतज़ार। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान कल आमने सामने होंगे। ज़ल्मी चौथी बार और मुल्तान सुल्तान पहली बार फाइनल खेलेगी। If something is too good to be true, it often is. I never asked for this. और ज़ेर ज़मीन होने वाली एक लड़ाई में खातून जंगजू की दास्तान। एक्शन थ्रिलर मूवी इंसेंट का ट्रेलर जारी। फिल्म बरतानिया में रिलीज़ हो चुकी, अमेरिका में 2 जुलाई को आएगी। इंतकाम लेना है उनसे जो उसे तबाह कर चुके हैं। एक मार्का आराई है जो इस खातून फाइटर के मुकद्दर में लिखती गई, जिसका क्लाइमेक्स शानदार है।